ہمارے ساتھ ہی رہے گا عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا. عبداللہ حمید صاحب یہ کہیے گا کہ دونوں ممالک کی جانب سے سخت موقف سامنے آیا ہے اور اس طرح کے بیانات جو کہ مذاکرات کو اثر انداز کر سکتے ہیں, آپ اس سب سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. صبح بخیر. دیکھیے, امریکہ کی جانب سے میرے خیال میں ایگریشن آیا. ایران نے تو صرف رسپانس دیا. انہوں نے یہ بتایا کہ ہم آپ کے دھمکی کے اندر اب ہمیں اس کو قبول نہیں کرتے. دھمکی قبول کرنی ہوتی تو جنگی نہ شروع ہوتی, دھمکی قبول کرنی ہوتی تو معاملات اس نہج پہ ہی نہ پہنچتے. شہادتیں انہوں نے کروا لی, نقصان انہوں نے کروا لیا, ہر ظلم انہوں نے سہ لیا. 47 سال سینکشن انہوں نے برداشت کر لیں. اور کس بات کے اوپر؟ ہر بار امریکہ نے جو وعدے کیے 2015 میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے وعدہ کیا تو جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے 2018 میں اس کو منسوخ کر دیا. ان سے جو کچھ کمٹ کیا وہ ختم ہو گیا. پھر 2025 میں جب ٹاک شروع ہوئی اور اس کو تقریباً وہ سکسیسفل ہو چکی تھیں نیو پر, تو اس کے اوپر پھر حملہ کر دیا. دس مینس کہ نیوکلیئر کا بھی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی اسٹریٹس آف ہارموز تھا. اسٹریٹس آف ہارموز اگر مسئلہ ہوتا تو اس کو اسٹریٹ آف ایران تو خود ڈونلڈ ٹرمپ نے مان لیا. پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے زبردستی کر کے اب وہ چاہتے یہ ہے کہ کسی صورت میں ایران کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا دوں, اتنا زیادہ ان کو ڈیمیج کر دوں کہ یہ پھر اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے. امریکہ تو یہ مان چکا ہے کہ نہ وہ یہ جنگ جیت سکتا ہے نہ اس جنگ کا کوئی نتیجہ نکلے گا. پاکستان نے ایک جو گھوڑے کو کنویں تک تو لے آئے ہیں لیکن زبردست جھکا کے پانی تو نہیں پلایا جا سکتا. پاکستان نے جو کیا ہے, آپ دیکھیں نا کہ جو ممالک جن کے سفارتی تعلقات 47 سال سے منقطع ہیں, پاکستان ان کو اس بڑے مقام پر بالکل ٹیبل عبداللہ پہ صاحب, بٹھا اس دیا بات ہے. کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی 1-2 سالوں کی جنگ نہیں ہے, بہت پرانی رائیوری ہے دونوں ممالک کی, اور ظاہری سی بات ہے دونوں ہی اپنے اپنے طور پہ اپنے آپ کو سپر سمجھتے ہیں. ساتھ ہی رہے گا اس وقت قمر ہمیں ہمارے رپورٹر اسلام آباد سے جوائن کر چکے ہیں. قمر, پوری دنیا میں اسلام آباد اس وقت آئی کیچ بنا ہوا ہے اور ایک دوسرا دور جو کہ ہے اس کی میز سجنے والی ہے اسلام آباد میں. کیا تیاریاں ہیں, سیکیورٹی کا کیا پلان تشکیل دیا گیا ہے, بتائیے گا. جی بالکل, تیاریوں کو جو ہے وہ گزشتہ روز ہی حتمی شکل دے دی گئی تھی اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ ریڈ زون کو مکمل طور پر بند کیا گیا اور ایکسٹینڈڈ ریڈ زون کو جزوی طور پر مختلف مقامات سے بند کیا گیا ہے. 2 شاہراہیں جو ہے وہ مین جس طرح ایکسپریس وے اور سری نگر ہائی وے, ان کو وقتاً فوقتاً بند کرنے کی ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کی گئی ہے, لیکن اس کے متبادل روٹس جو ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں. گزشتہ روز کچھ وفود جو ہے وہ یہاں پر پہنچے تھے, اس کے بعد ریڈ زون کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا تھا. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ریڈ زون کی جو ایک ریڈیس بنتا ہے اس کے اندر جتنے بھی سکولز, دفاتر اور وہاں پر موجود جو عمارات میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے ڈے آف ہوگا, لیکن اس کے لیے ورک فرام ہوم کی جو ہے وہ ارینجمنٹ کرنے کے انتظامات کرنے کے لیے حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا تھا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ریڈ زون کے علاوہ جو ایکسٹینڈڈ ریڈ زون ہے اس کی طرف بھی آنے والے جو راستے ہیں وہ کافی حد تک بند ہے. وفود کے لیے جو انتظامات کیے گئے میں آپ کو بتاؤں کہ ریڈ زون کو گرین لائٹس کے ساتھ سجایا گیا ہے. اس کے علاوہ ریڈ زون کے اندر جو 2 ایسے ہوٹلز تھے ان کو خالی کروا لیا گیا ہے جہاں پر مختلف ڈیلیگیشنز جو ہیں ان کو ٹھہرایا جائے گا. کچھ ڈیلیگیشن تو گزشتہ روز پہنچے تھے. گزشتہ روز صبح سے ہی یہ تمام ایکٹیویٹی شروع ہوئی تھی, جس کے بعد یہ VVIP روٹ کا جو تمام معاملہ تھا اس کو شروع کر دیا گیا تھا اور اسی وجہ سے یہ روٹ پلان جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد کل سارا دن اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ یہاں اگر ریڈ زون کو جانے والے جتنے بھی راستے ہیں ان کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے. جو پولیس کی نفری ہے اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو 7,000 نفری اسلام آباد پولیس کی اس پر ڈپیوٹ کی گئی ہے, جبکہ 7,000 مختلف اضلاع جس طرح پنجاب کے 10 اضلاع سے یہ 7,000 نفری جو ہے وہ مزید منگوائی گئی تاکہ فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے انتظامات کیے جائے. جو وینیو ہے اس کو ڈیسائیڈ جو ہے وہ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو کل ایڈوانس ٹیمز یہاں پر پہنچی تھی ان کے حوالے سے مختلف ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں سیکیورٹی حکام کے ساتھ تاکہ جو روٹ پلان ہے آنے والے ڈیلیگیٹس کا وہ آپ ہمیں اسلام آباد کی سچویشن کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے, مزید بھی اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے. اس وقت اپنے پینل کی جانب واپس چلتے ہیں. احمد سعید مناز صاحب, آپ کہیے گا کہ ایران کی جانب سے جو مذاکرات کے لیے اور جو مطالبات کیے گئے تھے وہ یہ تھے کہ لبنان میں جنگ بندی اور ساتھ ہی منجمد اثاثوں کی بحالی, تو آپ کے خیال سے امریکہ ان شرائط پر کیا رد عمل ہوگا اور ساتھ ہی کیا وہ اس کو مکمل طور پر تسلیم کر لے گا؟
देखिए जी, जब बात की गई थी ईरान की जानिब से कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलते हैं, तो उन्होंने उसके साथ स्ट्रिंग अटैच की थी लेबनान की। दो के अमेरिकन्स ने और इसराइलीज़ ने फ़ौरन इसको रिएक्ट किया था और उसको रिबटल जारी किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेबनान से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन ईरान की इंसिस्टेंस पर और पाकिस्तान की मीडिएशन पर जब हमने उनको मजबूर किया और उसे कहा कि इसको लाजमी हमें करना ज़रूरी है ताकि उनकी ये सेंसिटिविटी एड्रेस हो जाए, तो इस सिलसिले के अंदर हमने देखा कि अमेरिका के अंदर जो वज़ीर आज़म है इसके लेबनान के, वो और नेतन्याहू और उनकी टीम ने मुलाकात भी की और 10 रोज़ा उन्होंने जंगबंदी भी की। तो इट वाज अ स्टेप विच वाज वेल रिसीव्ड बाय द लेबनानीज पीपल ऑल्सो, और दीगर जो ममालिक में एक अच्छे तरीके से उसको देखा गया था। अब उन्होंने 10 रोज़ा की तो है, लेकिन साथ साथ वहाँ पे थ्रेट्स भी दी जा रही हैं इसराइल की जानिब से कि हम लेबनान के ऊपर दोबारा अटैक करें। अब वो कह रहे हैं कि आप टोटल डिसार्म कर दें हिजबुल्लाह को, तो हिजबुल्लाह टोटल डिसार्म करने के लिहाज से कोई लियन है कोई नहीं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का लेबनान के कि वो हिजबुल्लाह को मुकम्मल जो है वो सरेंडर करवा सकें। और आप हिजबुल्लाह से तो डिमांड कर रहे हैं, हुतीस का तो डिमांड कर रहे हैं और हमास से भी कह रहे हैं कि आप जो डिसाम हो जाए। व्हाट अबाउट जो आपके अपने एसेट हैं अमेरिकन के, जो कि इसराइल की सूरत में मशरिक़ वस्ती में मौजूद है, तो उसको डिसाम करने की क्यों नहीं बात करते? तो कोई भी अपने हाथ नहीं कटवाएगा, इसके ऊपर नेगोशिएशंस लाजमी हो सकती हैं। एक परपेचुअल पीस करने के लिए मेरे ख्याल में इसराइल का भी उसी तरीके से जो है अमेरिकन को जो है उसको चेकमेट करना चाहिए, जैसे कि वो ईरान से चाहते हैं कि वो हिजबुल्लाह को, हमास को और हुतीस को कंट्रोल करें। तो इट्स अ डाइसी काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन ये तमाम चीज़ें जब आप टेबल पे बैठेंगे नेगोशिएटिंग की, तो वहाँ पे ये डिस्कशन में आएंगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि टोटल आप डिसार्म कर देंगे। ईरान भी कभी नहीं चाहेगा कि आप यूरेनियम उठा के वो जैसे कि डिमांड कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो अमेरिकन को दे दें। हाउ इट्स पॉसिबल? उसने एक जंग जीती हुई है, उसने सर्वाइवल उसका जो है बेहतरीन किस्म का दिफा था अपना, और पूरी उसकी अवाम जो अपने अवाम जो है फौजों के साथ खड़ी हुई है या रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ खड़ी हुई है। तो इसके भी तरीक़ेकार है। वो IAEA है, एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए ये कैमरा लगा के इन तमाम यूरेनियम के जो तकरीबन 450 किलोग्राम, वो भी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, उसका कुछ एलिमेंट है, वेपन ग्रेड इनके पास है भी नहीं, तो लिहाजा वो कभी भी नहीं देंगे। ये हो सकता है कि कोई कंसोर्शियम बना दें जिसमें पाकिस्तान भी हो सकता है अमेरिकन भी हों, या कोई और न्यूट्रल ममालिक हों जिसमें वो मजीद चेक करते रहें कि यूरेनियम जो ईरान पे मौजूद है वो डाइवर्ट नहीं हो रही हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द वेपन प्रोग्राम। लेकिन आप ये कहेंगे मैं यूरेनियम उठा के ले जाऊंगा, मेरा नहीं ख्याल है, ये भी नॉन स्टार्टर होगा। लेकिन जब ये टेबल के ऊपर बैठेंगे तो ज़रूर कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा। दोनों फ्री कैन चाहते हैं कि जो है अमन हो और किसी एग्रीमेंट को पहुंचें। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि 2-2 साल लंबे जो है उसमें वेट करना पड़े, जैसे कि जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था जिसमें 2 साल लगे, ये 21-22 महीने लगे थे। उससे पहले अमेरिकन ने वियतनाम में 5 साल का टाइम लिया था जब उन्होंने पेरिस पीस एग्रीमेंट किया था, या उससे पहले कोरियन वॉर में उन्होंने 2 साल में किया था। ईरानियंस ये चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके तमाम पॉइंट्स के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं ताकि इस खित्ते के अंदर अमन हो। और एक गारंटी उनको चाहिए कि आज तो आपने अमन कर लिया, अभी भी उनको ये शक व शुबहात है कि ये जो पीस बीच में इंटरवल है वो सवाल तो ये भी उठेगा कि वो गारंटीयर कौन होगा? क्या वो पाकिस्तान गारंटी देगा, वो कतर गारंटी देगा, या वो टर्की गारंटी देगा? इस पे भी हम बात करेंगे। अब्दुल्ला साहब, आपकी तरफ आती हूँ। आज बड़े बड़े न्यूज़पेपर पे एक ही जो थी शायद सुर्खी थी, वो ये कि ईरान जो है वो कहता है कि जी इस टेबल टॉक का हिस्सा बनने का हमारा कोई प्लान नहीं है। इवन टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। तो अगर एक फरीक ही इनकार कर रहा है कि मैं इस टेबल टॉक का हिस्सा नहीं बनूंगा, और दूसरा फरीक ये कहता है कि हमारे नुमाइंदे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, और ये भी जाहिर किया जा रहा है कि शायद अमरीकी सदर खुद भी कल पाकिस्तान आएंगे, तो ये तो एक ऐसी नामुनासिब सी चीज़ है जिसका कोई हतमी नतीजा सामने आ ही नहीं रहा कि एक फरीक कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, दूसरा फरीक कह रहा है कि मैं पहुँच रहा हूँ। तो जब एक फरीक टेबल पे बैठेगा ही नहीं तो चीज़ें कैसे हल होंगी, या अब उसको मनाने के लिए कुछ और चीज़ें सामने आएंगी? देखिए, दोनों चीज़ों को सामने रखना चाहिए। पहली बात यह है कि ईरान को एक बहुत अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है, पूरी दुनिया की हमदर्दियां उसके साथ हैं। डिप्लोमेटिकली मेरे ख्याल में वो एक बेहतर पोजीशन के अंदर है। अमेरिका तो टोटली मेरे ख्याल में जिसको कहते हैं ना कि वर्ल्ड ओपिनियन उसके खिलाफ हो चुकी है। इसलिए ईरान को इसको कैश ज़रूर करवाना चाहिए, इस ओपिनियन को। जहाँ ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें कही हैं वो अपनी जगह, उन प्रोसेस के अंदर टाइम था और वो ले सकते थे। अफगान प्रोसेस भी बहुत
लंबा चला और दोहा के अंदर मुज़ाकरात चलते रहे। लेकिन मसला यहाँ ये नहीं है, मसला यहाँ ये है कि दुनिया एक इकोनॉमिक चैलेंज से पहले नबरदाज़मान नहीं हुई थी। जंगों ने इस तरह से इकोनॉमिकली दुनिया को चोक नहीं कर दिया था। ये एक चोक पॉइंट बन चुका है और बाबल मंदब जो है वो भी बंद कर दिया जाएगा अगर इसी तरह सूरत हाल प्रिवेल की। अब मसला यहाँ एक और है, अमेरिका ज़बरदस्ती अपनी एक जो अना है उसको बचाना चाह रहा है। जितना वो अब इसको बचाने की कोशिश करेगा उतना ये उसके लिए नुकसानदेह साबित होगी। इसराइल उसके लिए एक एसेट नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी बन चुका है और ये बात अमेरिकन को समझ जानी चाहिए। दूसरी जानिब इस ईरान की बात है, ईरान क्या करे? एक तरफ उनको आबनाए हुर्मुज़ के अंदर उनके ऊपर पाबंदियां लगाएं, उनके जहाज़ों को उनके ऊपर ऑपरेशन करने की तैयारियां की जाएं, उनको धमकियां लगाई जाएं कि हम जो है वो तुम्हें जो स्टोन एज में पहुंचा देंगे, हम तुम्हारे बिजली घरों को तबाह कर देंगे और उसके मुकाबले में ईरान आए और इनके साथ टॉक्स के अंदर बैठे। ये कैसे दोनों चीजें मुमकिन नहीं है ना, या सिफारतकारी होगी या फिर जंग होगी। जंग का अमेरिका मुतहम्मल नहीं हो सकता और ना ही ईरान भी नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान, इसराइल और अमेरिका तीनों के लिए जंग अब आगे मजीद बढ़ाना मासवाए एक हौलनाक जंग की तरफ ले जाने को अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। क्योंकि इस बार जो जंग होगी, अल्लाह ना करे, मैं नहीं देख रहा उसको बिल्कुल भी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर होगी तो फिर वो इतनी तबाही होगी जिसका मेरे ख्याल में दुनिया ने शायद वो पहले मनाजिर ना देखे हों। दूसरी जानिब एक और बात है और वो ये है कि ईरान जाहिर है अमेरिका के किसी भर्रे में आ नहीं रहे, क्या किसी उसकी धमकी में आ नहीं रहा। वो ये कहता है कि जी एक तरफ तुम ये हमसे धमकियां लगाते हो और जबरदस्ती तुम हमारे गर्दन के ऊपर अंगूठा रख के समझते हो कि हम तुम्हारी बात पे झुक जाएंगे, जबकि जंग हमने जीती है, हर सतह में जीती है, दुनिया हमारे साथ खड़ी है और तुम कहते हो कि जी नहीं हम तो वो काम करेंगे, यूरेनियम डस्ट भी ले जाएंगे। अमेरिका यानी कि जो एग्रीड अपॉन चीजें थी उनसे पीछे हटता चला जाता है और माजी में एक लंबी दास्तान है। 2006 के अंदर पहली दफा ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम का ऐलान किया था और 1967 के अंदर अमेरिका ने इनको पहला न्यूक्लियर प्लांट भी दिया था। अब अमेरिका का वो फैसला गलत था या आज फैसला वापस लेने का गलत है? तो ये दोनों आखिर किए किसने थे फैसले? तो दोनों अमेरिका ने किए थे। फिर पाबंदियां उनके ऊपर लगा दी, लीडरशिप उनकी शहीद कर दी, उनके आपने 1000 से ज्यादा बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा दिया। आप क्या चाहते हैं? अब आप ये चाहते हैं कि ईरान आपके सामने सरेंडर कर जाए? इतना बड़ा मुल्क नहीं सरेंडर करेगा। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये बिल्कुल ये नहीं करेगा। और कोई मुल्क आप मुझे बताएं, तारीख में देख लें कौन सा मुल्क है जिसने ताकत के सामने सरेंडर किया? कौन सी कौम है जो झुक गई? अभी ईरानी कौम की बेटियों ने जिस तरीके से गुलाबी रंग की क्लैशनकोव्स पकड़ के और कंधों के ऊपर जो उन्होंने रॉकेट लॉन्चर रखे हुए थे, क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस मीन्स के ये तो एक कौम कोई भी हो गई मुल्क है। मुकम्मल तौर पर इस तरह से सरेंडर नहीं करेगा। आप हमारे साथ ही रहेगा। अहमद सईद मिनाज साहब, आपका इस बारे में क्या टेक है कि एक तो ईरानी सरकारी टीवी की जानिब से ये बयान सामने आना कि अमरीकी नाकाबंदी की वजह से जो है वो खिलाफ वर्जी जारी है, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी है और शायद इस वजह से हम इस दौर में शामिल ना हो सके, ये खबरें सामने आना किस हद तक आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात को असरअंदाज कर सकती हैं और क्या आपके ख्याल से ईरान का ये टेक बिल्कुल दुरुस्त है? जी बिल्कुल, मैं आई स्टार्ट बाय सेइंग बिल्कुल दुरुस्त है। अगर नेगोशिएशंस की इसको ज़रूरत देखें तो ईरान से ज़्यादा अमेरिकन को है। तो क्योंकि ईरान तो बिल्कुल कहता है कि हम तैयार हैं मौत के लिए, और वहाँ की जो माएँ हैं वो तो स्पेशली आप जितना उनका डोमेस्टिक मीडिया ईरान को उठा के देखें, वो अपने शौहरों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को वो इनकरेज कर रहे हैं कि आप जो है वो जाके इस जंग में लड़ें। और जो जिस तरह नेशन हुड की बात करें तो ईरान अपनी मिसाल में एक मेरे ख्याल में बहुत ऊंचे मकाम के पर मौजूद है। और स्पेशली जब आपने अमेरिकन जैसी ताकत को आपने टक्कर दे रखी हो और अपने तमाम अहदाफ को अचीव किया हो। आप जंग हारना या जीतना जो डिस्ट्रक्शन से नहीं आप अंदाज़ा लगाते हैं, आप ये देखते हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव किए, कैसे सर्वाइव किया, वीज़ा-वी आपका जो दुश्मन था वो कितना स्ट्रॉन्ग था। अब अमेरिकन की जानिब से ये जो जहाज़ को रोका और उसके इंजन रूम को उन्होंने तबाह किया और मैरीन उस पर लैंड की और फिर अभी उसके ऊपर उतरते हुए उन्होंने मैरीन से जैसे वीडियोस बनाई हैं, ये तमाम चीज़ें आपका क्या ख्याल है? ईरान में जो पब्लिक है वो क्या इस चीज़ के हक़ में होगी मज़ीद के अपने लीडर्स को कहें कि आप जाके नेगोशिएट करें? तो इट्स अ नॉन स्टार्टर बेसिकली। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस,
जैसे कि तैयारियां हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, आपके नुमाइंदा खुसूसी भी बता रहे हैं इस्लामाबाद में कि वहाँ पर ऑलमोस्ट लाइक जो है वो कर्फ्यू टाइप ऑफ समा है। डेफिनेटली जो हमें करना भी है, बिकॉज आप अपने ईस्ट के ऊपर देखें, इंडियन मीडिया को उसका देखें तो वो बगलें बजा रहा है, वो खुश हो रहा है। इसी तरीके से जो इजरायली मीडिया है या जो इसराइली एफिलिएटेड या उनसे फंडेड मीडिया है दुनिया में, वो इस वक्त इस पे खुशी का इज़हार कर रहा है कि टॉक्स जो हैं वो स्टॉल हो जाएंगी या हो गई हैं क्योंकि ईरान ने मना कर दी है। लेकिन एज एन ऑप्टिमिस्ट मैं ये भी समझता हूँ और जानता हूँ किसी हद तक कि बैकडोर पे दोनों मुमालिक आपस में अभी भी बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान जो फैसिलिटेशन कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने कल शाम में इसकी तो बात खुद अमेरिकी सदर ने की ना, तस्दीक की इस बात की जब वो सिचुएशन रूम में थे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भी हमारा राबता है और ईरान से भी हमारे राबते चल रहे हैं, तो इस बात की तो तस्दीक खुद अमेरिकी सदर कर गए हैं। साथ ही रहेगा कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब मुझे ज्वाइन कर चुका है। आबिद साहब बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त अगेन इस्लामाबाद जो है वो पूरी दुनिया का के लिए मरकज़ निगाह बना हुआ है। सेकेंड राउंड जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे, परसों भी बात कर रहे थे, अब फाइनली वो यही है कि कल इस्लामाबाद में शुरू हो जाएगी। सर क्या लगता है किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे? इस बात को भी हमें मद्देनजर रखना है कि अमेरिका ने ईरान के बहरी जहाज को तहवील में लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे मदऊ करने के लिए। जी देखिए, क्योंकि जैसे अभी बात भी कर रहे थे, बिगड़े मनास भी बात कर रहे थे, ये बेसिकली बहुत कम्प्लेक्स ज़ाहिर है एक मामला है जिसमें जो राइवलरी है वो बहुत पुरानी है। फिर उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये पूरा रीजन वॉलेटाइल है, जहाँ पे ये मिडल ईस्ट और आप गल्फ स्टेट्स की बात करें, और फिर जो अरब क्वेश्चन है वो इस रीजन को सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है। और उसका जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है वो इजराइल है। और जब वो इस कॉन्फ्लिक्ट का एक मेन एंटागोनिस्ट है, उस एंटागोनिस्ट को आप निकाल नहीं सकते इस इक्वेशन के अंदर से। तो इक्वेशन बहुत मुश्किल है, और इसका जो इज इक्वल है वो क्या आता है, आप इसको जब अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन नेवरदलेस जी एफर्ट हो रही है, और इनको एक टेबल पे लाना, टेबल पे लाके बात करना, आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जितनी मर्जी कम्प्लेक्सिटी हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो एक इस वक्त, मैं तो पहले भी आपके चैनल पे कई दफ़ा कहा कि असल में जो इशू है, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट इशू होगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, और वो अप्रूव हो रहा है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो ईरान वाली साइड है वो तो ईरान ने उसका कंट्रोल इन अ वे डिफेक्टो कंट्रोल ईरान के पास है। लेकिन जो उसका जो गल्फ ऑफ ओमान है वो वाली साइड पे अब अमेरिका ने कंट्रोल कर लिया। सो वो अब जो ईरान की जो शिप्स हैं उनको वो वहाँ पे रोकते हैं। सैटेलाइट से ही जब वो कोस्ट से निकलते हैं तो उसको वो ट्रैक करते हैं, और जब उनकी रेंज में आता है तो उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी ये वाक़या हुआ। लेकिन नेवरदलेस जी देखिए, ये जो छोटे मोटे वाक़यात हैं, मैं इनको छोटा मोटा इसलिए कहूँगा कि बहुत, अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव में ग्लोबल देखें तो ये एक छोटा सा वाक़या है। लेकिन अगर आप उसको उस इवेंट के तौर पे देखें या इन सिचू देखें तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा वाक़या है। क्योंकि उससे फिर एक जो आपकी परसेप्शन है कि जी नेगोशिएशंस हो रही हैं या हम किसी मकाम पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे जाके कुछ चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, वो थोड़ी सी इफेक्ट होती है। लेकिन ये अमेरिका का जो टैक्टिस है, बेसिकली अमेरिका को भी ये बात समझ आ गई है कि ईरान एज ए डेटरेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को यूज़ कर रहा है। तो अब वो उस डेटरेंस को ख़त्म करना चाहता है, वो उस डेटरेंस को काउंटर करना चाहता है, और उसको काउंटर करना चाहता है कंपेलेंस के थ्रू। वो चाहता है कि ईरान को कंपेल करे कि उसकी जो डेटरेंस का इफेक्ट है वो यहाँ पे मिटिगेट हो जाए बाय कंट्रोलिंग द अदर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मज़। तो इसलिए ये आई थिंक नेगोशिएशन से पहले ये हो रहा है। अभी आपके न्यूज़ भी चल रही थी आप ही के चैनल पे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने 45 मिनट्स कल बात की है ईरान के प्रेसिडेंट साहब से, और फिर अभी भी ये एक न्यूज़ है कि वो अभी भी शायद थोड़ी देर में उनसे बात होने को जा रही है। और जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी थोड़ी देर में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से बात करने लगे। तो आई थिंक ये एक एफर्ट्स चल रही हैं जी। अगले 2-3 घंटों में मेरा ख्याल में ये अनाउंस हो जाएगा कि ईरानी डेलीगेशन कब आज यहाँ जारी है, और इंशाल्लाह अगले 2-3 घंटों में पॉजिटिव डेवलपमेंट ही आएगी। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद